students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 5, that is HTML5, creating web pages. So let's begin with this. So what is HTML? HTML is a programming language. So in this chapter, we are going to study about the HTML, HTML5, semantic tags, creating and saving HTML document. Then we are going to study about the structures of web pages that we create through HTML and how to display the web pages in web browser. Then we are going to study about the modifying web paragraph text, and the last one is heading text and formatting text. So let's begin with introduction. Here, today we can download any information or document containing text, sound, graphic, audio and video through the internet with the help of web browser. आजकल हम डाउनलोड कर लेते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, किसकी हेल्प से? वेब ब्राउजर की हेल्प से, इंटरनेट से. सो वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर. वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो इनेबल करता है कंप्यूटर को डिस्प्ले करने में एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट. These web documents are written in a special language. जो web documents होते हैं special language में लिखे होते हैं. That is HTML. HTML क्या है? Stands for Hypertext Markup Language. It allows the user to create and structure web pages. ये allow करता है user को create करने के लिए, structure करने के लिए web pages को and application को to be displayed on the internet. HTML documents are made up of text content. जो HTML documents होते हैं किससे बने हुए होते हैं? Text content से बने हुए होते हैं and special codes known as text. These that tell web browser how to display the content. ये बताते हैं web browser को कैसे display करना है content. It also provides a means to link the web page. ये means भी provide करता है link करने के लिए web pages को. HTML documents are identified by .html और .html file extension से identify होते हैं. Now history of HTML. क्या history है HTML की? HTML was invented by a scientist. किसने invent किया था? Scientist ने invent किया था Tim Berners-Lee ने 1990 में. So his purpose was to make it easier for scientists to gain access. ये किसका क्या purpose था इनका? Easier बनाने के लिए, scientists को gain करने के लिए access to each other's research documents. The project became a huge success. ये project huge success बन गया था by inventing HTML. He laid the foundation for the web. अगर जब इन्होंने इन्वेंट कर दिया था HTML, इन्होंने ले करी थी फाउंडेशन किसकी? वेब की, which is very well known today. So HTML has gone through several versions. बहुत सारे versions आए हैं HTML के, each of which expands its capabilities. Although most browsers still support HTML versions, कुछ browser आज भी support करते हैं HTML version को 3.2, 2.0, 4.01. Includes rules for using more than 90 HTML tags. इसमें क्या क्या rules include है? More rules included 90 HTML tags. ये improvement है of previous versions by adding better support for multimedia and style sheets. The most recent version HTML5 includes rules. इसमें क्या included? Rules included for using more than 100 different HTML tags. HTML5 succeeds HTML 4.01, which was released in 1999. कब release हुआ था? 1999 में. So let us study about this version. HTML5 क्या है? Is the fifth and the latest major HTML version. ये fifth और latest major HTML version है. That is an improvement of previous version. ये previous versions की improvement है. So it includes new tags. The new tags included for defining common type of page content and better support for media. So it is designed to deliver almost everything without requiring. So ये किस लिए डिजाइन है? डिलीवर करने के लिए ऑलमोस्ट एवरीथिंग विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल प्लगइन्स नहीं चाहिए एडिशनल. विद HTML5 वेब पेजेस कैन स्टोर डेटा. वेब पेजेस डेटा स्टोर कर सकता है विद इन द यूजर्स ब्राउजर्स, ऑल्सो नोन एज लोकल स्टोरेज, इसके लिए हम लोकल स्टोरेज भी कहते हैं. सो अर्लियर दिस वाज डन विद कुकीज. पहले कुकीज से होता था. हाउएवर वेब पेजेस नाउ मोर सिक्योर एंड फास्टर. आजकल वेब पेजेस ज़्यादा सिक्योर भी है और फास्टर भी है. सो द डेटा इज नॉट इंक्लूडेड विद एवरी सर्वर रिक्वेस्ट. जो डेटा होता है हर सर्वर रिक्वेस्ट के साथ इंक्लूडेड नहीं होता, बट इट यूज ओनली व्हेन रिक्वायर्ड हो, जब यूज होता है जब हमें रिक्वायर्ड होता है. HTML5 इज ऑल्सो क्रॉस प्लेटफॉर्म, दैट इज इट वर्क्स ऑन स्मार्टफोन्स. ये स्मार्टफोन्स पे भी वर्क करता है, नोटबुक्स में, नोटपैड्स में भी, tablets and other devices. It works all major
ब्राउजर्स सच एज इस वर्क्स ऑन ऑल मेजर ब्राउजर्स जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, एप्पल सफारी हो गया, गूगल क्रोम एंड ओपरा मिनी. Now, features of HTML5. क्या features है इसके? So, it comes with a variety of new and advanced features that make the life of developers more flexible. So, इन्होंने life जो है developers की ज़्यादा flexible बना दी है HTML5 में. Like, we can create dynamic websites. हम dynamic websites create कर सकते हैं HTML5 पे. It is a case insensitive language. एक case insensitive language है. स्पेसेस एंड टैब्स कैन बी यूज एनीवेयर. जो स्पेसेस और टैब्स है उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में. HTML फाइल डॉक्यूमेंट इज रिटन इन टेक्स्ट. रिटन एट टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड हो गए एंड गैजेट हो गए एंड वर्ड प्रोसेसर लाइक वर्डपैड, MS Word and Writer. A text editor is a program. ये program है that allow a user to enter, change, save and print text. जो allow करता है यूजर को एंटर करने के लिए, चेंज करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए टेक्स्ट को. It does not have many advanced features. में बहुत सारे advanced features नहीं है but allow है. It does allow us to develop HTML document easily. हमें allow करता है HTML document को easily develop करने में. Now let's talk about HTML5 element, the basic building blocks. So, an HTML5 element is everything between the start tags and the end tag. हर चीज़ start tag में और end tag में, including the text. HTML consists of text. HTML में क्या है? Text है. Text है special instructions के साथ in the form of text which is enclosed within angular brackets. Angular brackets में enclosed है. HTML text है browser. ये browser को बताता है how to organize and present content, कि कैसे organize करता है और कैसे present करता है content को. For example, title. Graphic Zone Public Books Privately Limited, that is angular bracket open slash title angular bracket close. HTML text can be categorized into two categories. दो categories में categorized होता है. Container text. Container text क्या होता है? Tags that have both starting as well as ending. जिन टैग्स में स्टार्टिंग भी होती है और एंडिंग भी होती है और इनको हम क्या कहते हैं? कंटेनर टैग्स कहते हैं. द टैग इज ओपन यूजिंग कैसे ओपन होता है? ओपनिंग एंगुलर बॉक्स के साथ और ब्रैकेट के साथ ओपन होता है. एंड क्लोज कहता है क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट दिए जो क्लोजिंग वाला उससे क्लोज होता है. एंड फॉरवर्ड स्लैश में फॉर एग्जांपल एंगुलर ब्रैकेट ओपन HTML एंगुलर ब्रैकेट क्लोज स्टार्टिंग टैग है ये ओपनिंग टैग का. Angular bracket open o forward slash then HTML then closing angular bracket ending tag that is closing tag. Now empty text can tags that have only a starting and there is no need to close them. जिनमें खाली starting होती है उनमें close करने की नीड नहीं होती. Using angulars or forward slash or closing slash angular tag इनको हम क्या कहते हैं? Empty text कहते हैं. Like for example BR starting tag है opening tag है इसमें. HTML attributes. Tags can also have attributes which are extra bits of information. Tags में क्या होता है? Attributes होते हैं जिसमें extra bits of information होती है. Most attributes work by setting a number or descriptive value. बहुत सारे tags work करते हैं कैसे? Set करके numeric और descriptive values को. Attributes always go inside the opening HTML tag. तो उसमें जाते हैं HTML opening inside HTML tag में जाते हैं and is a good practice to include attributes. ये अच्छी practice है close करने के लिए attributes को value को quotation marks में. So some tags use attributes. कुछ tags क्या use करते हैं? Attributes को use करते हैं. Like the font tag has a color attribute. Font tag में क्या होता है? Color attribute होता है जो allow करता है हमें change करने में color of text. Font color is equals to #00 FFFF. Now let's talk about fact folder. We can add entities. हम entities add कर सकते हैं वेब पेज पे by using special codes. Entities क्या है? Special characters है जैसे ये copyright symbol हो गया, fraction हो गया. Entities represent करते हैं characters को जो किससे precede होता है? ampersand. ampersand होता है ना हमारा, इससे represent होता है and follow किससे होता है? ये semicolon से follow होता है. Now semantic tags क्या होता है? HTML includes various semantic tags में बहुत सारे हमारे semantic tags include है जो enable करते हैं browser को display करने में content on the page. The doc type declaration at the beginning of a page specify that the document is writing in HTML5 की किस type का document है, किस में लिखा हुआ है? HTML5 में लिखा हुआ है. The navigation nav text is used for defining
important navigational links, ये define करता है important हमारे navigational links to other pages on a site. The header tag can be used to define introductory information. इसको हम use करते हैं define करने में introductory information like site name, company name and slogans. ये appear होता है at the very beginning of the body of web page. Footer tag is used to put contact address. ये किस लिए use होता है? Put करने के लिए contact address and other small print items on a page. It typically goes at the end of our page. It typically कहाँ जाता है हमारे page के end में before closing body tag. The canvas tag enable us to define a blank drawing. Enable करता है हमें define करने के लिए blank drawing area on our web pages on which we create a draw graphics. इसको हम create करते हैं draw graphics को. Section tag offers a generic way of grouping related information. ये हमें tag offer करते हैं generic way of grouping related information on a web page. The article tag is for defining self-contained information. Define करता है self-contained information on a web page. The aside tag represent a portion of document. एक पोर्शन जो होता है हमारे डॉक्यूमेंट का whose content is only indirectly, जो हमारा कंटेंट है उसका बस indirectly related है to the document's main content. नहीं ज़्यादा यूजफुल होता है डिफाइनिंग करने के लिए. पुल कोड्स, ग्रोसरी टर्म्स, ग्रोसरी आता है यहाँ पे, और सेट्स ऑफ लिंक्स रिलेटेड टू एन आर्टिकल. HTML offers a new audio and video tag. ये न्यू ऑडियो और वीडियो टैग ऑफर करता है. वीडियो टैग for embedding video clips and audio tag for integrating sound in web pages. हमारी sound को integrate करने के लिए हमारी web pages के लिए हम audio tags को use करते हैं. We can view the HTML code. हम HTML code को view कर सकते हैं web browser के press करके alt key को keyboard से. A menu bar appear होगा. By clicking on source, a view tab, a window display करेगा एक HTML code used for creating the web page. Now creating and saving a HTML document. कैसे create करते हैं, save करते हैं HTML document को. We need a text editor to create a web page. हमें text editor चाहिए था create करने के लिए web page को. Open Notepad, start icon windows, accessories पे जाना है, then Notepad पे जाना है to write HTML code. Follow the steps to create HTML document. So हमें open करना है Notepad. Open करने के बाद हमें type करना है अपने text for the web page without any formatting. And we can check for any spelling and grammatical errors in the web page. And आपको click करना है file पे in the menu bar, then click करना आपको save as पे to save the web page. Press करना आपको Control plus Shift plus S to save. The save as dialog box appear होगा आपके सामने. Type a name. आपको name type करना है web page का and add करना है extension to the web page name. A web page name can have letters. इसमें letters होता है, numbers होता है, but no spaces. कोई spaces नहीं होते. The main web page is usually named index.htm. Navigate to the folder to save page. Navigate करना है आपको folder को save करने के लिए पेज को. Click करना है आपको save as type box पे to see a list of the ways by which we can save the web page. जैसे हम save कर सकते हैं अपने web page पे, web page को. Then क्लिक करना है आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक कर देना है सेव पे. नोटपैड सेव कर देगा आपके पेज को. मेक श्योर दैट HTML टैग हैव ब्रैकेट्स. आपको मेक श्योर करना है कि HTML के टैग्स में ब्रैकेट्स जरूर होने चाहिए, क्लोजिंग टैग्स होना चाहिए, इंक्लूडिंग अ स्लैश एंड एट्रीब्यूट वैल्यू होनी चाहिए, सराउंडेड बाय कोटेशन मार्क्स. सो मल्टीपल HTML टैग्स शुड बी प्रॉपर्ली नेस्टेड. मल्टीपल जो हमारे HTML टैग्स होते हैं प्रॉपर्ली नेस्ट कर देना चाहिए. दैट क्लोजिंग टैग्स होना चाहिए, शुड बी इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द ओपनिंग टैग्स. जो क्लोजिंग टैग होना चाहिए वो रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए हमारे ओपनिंग टैग्स के. स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज. वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? HTML टैग्स डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज. ये डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर हमारे वेब पेज का. सम बेसिक HTML टैग्स आर HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी. ये बेसिक टैग्स है दैट इज एडिट बाय एवरी वेब पेज. हर वेब पेज इसको एडिट करता है. सो द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स विद HTML हेड बॉडी. एंटर हेयर व्हाट डॉक्यूमेंट इज अबाउट. आपको एंटर करना है कि डॉक्यूमेंट आपका किसके बारे में. एंड एंड विद बॉडी HTML. ऑल द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द वेब पेज इज फिटेड. जो सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है आपकी वेब में वो फिट हो जाती है बिटवीन द बॉडी एंड द बॉडी टैग. HTML टैग इंडिकेट दैट दिस वेब पेज इज रिटन इन HTML. जो HTML टैग है वो इंडिकेट करता है कि जो आपका वेब पेज रिटन है किस लैंग्वेज में रिटन है, HTML में रिटन है. Now adding doc type declaration. Doc type declaration को कैसे ऐड करते हैं? The doc type declaration at the beginning of a page specified that the document is written in HTML5. कि आपका document किस में रिटन है?
HTML5 में रिटर्न है। इन HTML5 द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। वहाँ पे डॉक टाइप पर डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होता है। टाइप करना है आपको डॉक टाइप HTML बिफोर द एंटायर टेक्स्ट ऑन द वेब पेज दैट दिस डिक्लेयर द डॉक्यूमेंट एज HTML5। डिक्लेयर करता है कि डॉक्यूमेंट कैसा आपका HTML5 में। So HTML tags can the first set of tags after doc type HTML tag is HTML and angular bracket open slash HTML angular bracket closing angular bracket. These tags indicate that the start and end of an HTML start or end indicate करता है हमारा HTML document का as well as declare करता है document as HTML. So type करना है आपको HTML just below the doc type HTML type करना है आपको HTML at the end of the entire text on the web page. हर entire text में अपने web page पे type करना है. Now what are head tags? The set of tags head and head contains the web page. इसमें web page होता है, title होता है, another descriptive information होती है about a web page. टाइप करना है आपको head directly below the HTML tag. कहाँ पे? HTML tag के बिल्कुल below. Then press करना है आपको enter की को and टाइप करना है head को. These tags define where the title and other descriptive information will appear. कि कहाँ पे आपको title और दूसरी descriptive information appear होगी. Now what are title tags? The title and the title tags indicate the title of web page. Indicate करता है title आपके web page का. The title bar or tab of a web browser window usually displays the title. Usually display करता है title. Type करना है आपको title directly below the head tag. Then type करना है आपको title above head tag. Then type title this text describe करेगा content of the page. Fact folder. So HTML tag mostly comes in pairs. जो HTML tag ज़्यादा किस में आता है? Mostly pairs में आता है with the ending tag containing an additional forward slash. उसमें क्या होता है? Additional forward slash होता है. Tag names cannot contain space. जो tag names होते हैं इनमें spaces नहीं होता. Now meta tags. What are meta tags? So we can add metadata. हम मेटा डेटा को ऐड कर सकते हैं अपने पेज पे टू इंक्लूड एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन. इंक्लूड करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन दैट डज नॉट अपीयर ऑन द ब्राउजर विंडो. जो अपीयर नहीं होती ब्राउजर विंडो पे. मेटा डेटा कैन इंक्लूड अ पेज डिस्क्रिप्शन. इसमें पेज डिस्क्रिप्शन इंक्लूड होता है, ऑथर एंड कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन होती है, कीवर्ड्स एंड मोर. Metadata tags can help search engines categorize आप पेज. हेल्प करते हैं सर्च करने में, इंजन को कैटेगराइज करने में हमारे पेज को. We define metadata in the document header. हम डिफाइन करते हैं metadata को और डॉक्यूमेंट हेडर में यूज करके मेटा टैग्स को. मेटा टैग अपीयर करते हैं बिलो द टाइटल टैग एंड बिफोर हेड टैग. टाइप करना है आपको मेटा नेम ऑथर फॉलोड बाय अ स्पेस एंड टाइप करना है आपको कंटेंट माइनिंग. बॉडी टैग्स. The final set of tags body and body contains the main content. उसमें main content होता है वेब पेज का. It is a container element. वो container element है जो इंक्लूड करता है टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को एंड अदर एलिमेंट्स को. टाइप करना है आपको बॉडी टैग के हेड टैग के नीचे. दिस टैग मार्क्स द बिगनिंग. ये जो टैग है मार्क करता है बिगनिंग ऑफ द एक्चुअल कंटेंट ऑफ आवर वेब पेज. टाइप करना है आपको बॉडी डायरेक्टली अबव HTML टैग. ये क्लोज करता है बॉडी पोर्शन को ऑफ द पेज. Displaying web page in a web browser. कैसे डिस्प्ले करते हैं वेब पेज को वेब ब्राउजर में? After creating and saving the web page can be displayed in the web browser. डिस्प्ले होता है वेब ब्राउजर में. ये अलाउ करता है to see how our web pages will appear on the web. कि हमारे वेब पेजेस कैसे अपीयर होंगे वेब पे. Start the web browser. आपको स्टार्ट करना है वेब ब्राउजर से इंटरनेट एक्सप्लोरर to say display the web page. आपको फॉलो करना है कुछ स्टेप. फर्स्ट आपको क्या करना है? प्रेस करना है Alt की को. देन फ्रॉम द कीबोर्ड टू ब्रिंग द मेन्यू बार इन द वेब ब्राउजर क्लिक करना है आपको फाइल पे टू ओपन द फाइल मेन्यू. देन आपको क्लिक करना है ओपन पे या फिर आप प्रेस कर सकते हो Ctrl+O. द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने. देन क्लिक करना है आपको ब्राउज इन ओपन डायलॉग बॉक्स पे टू लोकेट द वेब पेज ऑन द कंप्यूटर. वेब पेज को लोकेट करने के लिए अपने कंप्यूटर पे द इंटरनेट एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा. देन आपको नेविगेट करना है फोल्डर फ्रॉम टू ओपन के. ओपन कहाँ से करना है? वेब पेज पे. देन क्लिक करना है आपको वेब पेज टू ओपन पे. देन आपको क्लिक करना है ओपन पे. आफ्टर दैट ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक कर देना है ओके ओपन डायलॉग बॉक्स पे. Then we can see the web page appearing the web browser. The tab of web browser show the title we have given to our web page. टाइटल शो करेगा जो हमने अपने वेब पेज को दिया है. Modifying paragraph text. A paragraph tag P tag defines a paragraph. ये define करता है paragraph को जो it indicates starting of a paragraph. ये indicate करता है हमारे paragraph के starting को in the text. Browser automatically add करता है single blank line before and after each P element.
पैराग्राफ्स आर सराउंडेड बाय वर्टिकल स्पेस ऑफ वन लाइन। पैराग्राफ्स किससे सराउंडेड होते हैं? वर्टिकल स्पेस ऑफ वन लाइन से सराउंडेड होते हैं। नाउ स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ, कैसे स्टार्ट करते हैं न्यू पैराग्राफ को? तो स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट वी यूज पैराग्राफ टैग्स। हम पैराग्राफ टैग्स को यूज करते हैं। वेब ब्राउजर डू नॉट रीड द लाइन ब्रेक्स। वेब ब्राउजर रीड नहीं करते लाइन ब्रेक्स को, जैसे कि एंटर from keyboard, so we need to insert p। हमें p insert करना पड़ता p tag every time we want to start a new paragraph। और अगर हम new paragraph start करना है p tag insert करना है। when the browser finds p tag in an HTML file, जब browser को मिलता है p tag HTML file में, वो class start करता है new paragraph and insert करता है blank line को above the new paragraph। the p end tag indicate करता है end of the paragraph of the web browser। So the टाइप करना है आपको p in front of each paragraph at end में /p टाइप करना है आपको end of each paragraph on the web page। The web browser display a blank line between each paragraph। जो आपका web browser होता है डिस्प्ले करता है blank line आपके हर पैराग्राफ के बीच में। नाउ स्टार्टिंग अ न्यू लाइन, न्यू लाइन को कैसे स्टार्ट करते हैं? वी कैन इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। हम इंसर्ट कर सकते हैं लाइन ब्रेक टू इंसर्ट द ब्राउजर टू ब्रेक द टेक्स्ट। के इंसर्ट करने के ब्राउजर को टेक्स्ट ब्रेक करना है एंड गो टू अ न्यू लाइन। वी कैन यूज द लाइन ब्रेक टैग। हम यूज कर सकते हैं लाइन ब्रेक टैग्स को br को टू ब्रेक द लाइन टेक्स्ट। वेब ब्राउजर नॉर्मली रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। नॉर्मली क्या करता है वेब ब्राउजर? आपके रैप कर देता है आपके टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली। When a line of text reaches the right side, जो लाइन होती है आपके टेक्स्ट की राइट साइड में पहुंच जाती है ब्राउजर विंडो के, it breaks and continue on the next line। वो ब्रेक करती है और कंटिन्यू होती है आपकी नेक्स्ट लाइन से। This tag is also used to add blank line। ये टैग किससे यूज होता है? ब्लैंक लाइन्स को ऐड करने के लिए between paragraphs। Also it is an empty element। ये एक empty element है, that is it only has an opening tag। कि इसमें खाली एक opening tag है। Type br in front ऑफ ईच लाइन। आपको br टाइप करना है लाइन के फ्रंट में टू स्टार्ट द टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन। है स्टार्ट करने के लिए हमने टेक्स्ट को न्यू लाइन से। सो वेब ब्राउजर डिस्प्ले करता है हर लाइन को टेक्स्ट को एक न्यू लाइन में। फैक्ट फोल्डर बाय टाइपिंग NVSP वी कैन इंसर्ट अ ब्लैंक स्पेस। हम इंसर्ट कर सकते हैं ब्लैंक स्पेस विद अ लाइन टेक्स्ट टू इंडेंट और ऐड एम्फेसिस ऑन आवर टेक्स्ट। इंडेंट और ऐड करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए अपने टेक्स्ट को। दिस कोड स्टैंड्स फॉर नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ये जो कोड है किससे स्टैंड करता है? नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए। वेब ब्राउजर विल नॉट क्रिएट अ लाइन ब्रेक। वेब ब्राउजर जो होता है लाइन ब्रेक क्रिएट नहीं करते। वेयर we insert these characters, we can also use blanks। हम यूज कर सकते हैं blank spaces to help position an element on a web page, जैसे कि आपको ग्राफिक हो गया और अ फोटो। Now inserting a horizontal rule। horizontal rule को कैसे इंसर्ट करते हैं? We can add a horizontal rule or line across our web page। हम ऐड कर सकते हैं horizontal rule को या line across हमारी web page पे सेपरेट करने के लिए डिफरेंट सेक्शंस में of information। by default most web browser display a horizontal rule। बहुत सारे web browser display करते हैं horizontal rule as a thin gray line। किसकी तरह? thin gray line की तरह। we can insert any number of horizontal rules। हम कोई नंबर के भी horizontal rules को डिस्प्ले कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। टाइप करना है आपको HR where to insert horizontal rule, जहाँ पे आपको horizontal rule insert करना है अपने वेब पेज पे। तो horizontal rule is displayed by the web browser। जो horizontal rule है वो डिस्प्ले होता है वेब ब्राउजर पे। We can define the thickness। हम thickness and length डिफाइन कर सकते हैं width of horizontal line यूज करके size and width attributes within HR tag और टाइप करना है आपको size replacing with the desired thickness। किससे रिप्लेस होता हो? desired thickness से to be assigned measured in pixel। within the HR tag टाइप करना है आपको width टाइप करने के बाद replacing with the percentage of the page or the rule to extend across। heading tag डिफाइन करता है हेडिंग इन द वेब पेज। दे आर यूज टू सेपरेट टेक्स्ट। ये किस लिए यूज होता है? सेपरेट करने के लिए टेक्स्ट और ऐड करने के लिए core टॉपिक्स ऑन द वेब पेज। देयर आर 6 डिफरेंट हेडिंग्स। 6 डिफरेंट हेडिंग लेवल्स है व्हिच वेरी फ्रॉम H1 टू H6। जो वेरी करते हैं H1 से H6 तक। H1 टैग डिफाइन करता है लार्जेस्ट हेडिंग एंड S6 डिफाइन करता है स्मॉलेस्ट हेडिंग को। तो टाइप करना है आपको H क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ डिजायर्ड टेक्स्ट टू मेक अ हेडिंग। रिप्लेस करना है आपको क्वेश्चन मार्क को विद द डिजायर्ड हेडिंग लेवल एंड नंबर करना है फ्रॉम 1 to 6। द वेब ब्राउजर डिस्प्ले ईच हेडिंग विद अ डिफरेंट हेडिंग लेवल। जो वेब ब्राउजर डिस्प्ले करता है हर हेडिंग को हर डिफरेंट हेडिंग लेवल से। सेंटरिंग द हेडिंग, कैसे सेंटर करता है हेडिंग को? वी कैन एम्फेसाइज ऑन सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाय सेंटरिंग द हेडिंग टेक्स्ट। हम एम्फेसाइज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे सेंटर करके हेडिंग टेक्स्ट को। टाइप करना है आपको सेंटर इन फ्रंट ऑफ
द डिजायर टेक्स्ट, फ्रंट में डिजायर टेक्स्ट के अलाइन करने के लिए सेंटर में उसको टाइप करना है स्लैश सेंटर एट द एंड ऑफ द डिजायर्ड टेक्स्ट टू अलाइन द इन द सेंटर. द टेक्स्ट इज सेंटर्ड ऑन द वेब पेज. और टेक्स्ट सेंटर में आ गया वेब के आपके वेब ब्राउजर के. Here comment can be added to web page to write a note between it for ourselves. So comment add कर सकते हैं web page पे write करने के लिए note अपने लिए. So decide it also helps to update a section. ये help करता है update करने में section of text and specify other reasons for using specific tag. However, these comments will not appear when reader view our web page. ये comments जब appear नहीं होगी जब reader हमारे web page को view करेगा. टाइप करना है आपको एक्सक्लेमेशन मार्क वेयर वी वांट टू ऐड अ कमेंट. जहाँ पे आपको कमेंट ऐड करना है देन प्रेस करना है आपको स्पेस बार की, टाइप करना है कमेंट एंड प्रेस करना है स्पेस बार फिर से एंड देन टाइप करना है आपको एंगुलर ब्रैकेट स्लैश एंगुलर ब्रैकेट क्लोज टू कमेंट कंप्लीट द कमेंट. नाउ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, व्हाट आर दीज? वी कैन फॉर्मेट टेक्स्ट इन HTML. हम फॉर्मेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को HTML में यूज करके बहुत सारे टैग्स. these tags fall in two categories. ये जो टैग्स होते हैं दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं, लॉजिकल स्टाइल में और फिजिकल स्टाइल टैग्स में. लॉजिकल स्टाइल टैग्स क्या होते हैं? आर यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल स्टाइल्स. ये यूज होता है डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट हमारे लॉजिकल स्टाइल्स के अकॉर्डिंग. ये अलाउ करते हैं ब्राउजर को इंटरप्रीट करने में टैग बेस्ड जो होता है हमारे ब्राउजर सेटिंग्स पे relative to our other text on a web page. For example, heading text, strong text, etc. Now, physical style text. Specify a particular font. ये specify करते हैं particular font change that it is interpret. जो change होता है interpret होता है strictly by all browsers. For example, bold, B and slash bold text. Now, bold, italic and underline text. So the text looks different. ये जो टैग होता है डिफरेंट लगता है अपीयरेंस में एंड कैन चेंज होता है बाय मेकिंग इट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन. बोल्ड होता है हाईलाइटेड होता है, इटैलिक हो जाता है थोड़ा टिल्ड हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है आपकी टेक्स्ट नीचे अंडरलाइन आ जाती है. इट इज डन टू एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ये किस लिए होता है? एम्फेसाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी वेब पेज को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए करते हैं हम इसको. ना यूज करते हैं बोल्ड टैग्स को इन front of desired text to make it bold. उसे bold बनाने के लिए and slash p at the end of the text. Then हमारा I tag आता है in front of the desired text और slash I आता है end में हमारे desired text के. Then U आता है हमारे front में desired text के and slash U आता है हमारे end में desired text के. The text as bold, italic and underline is displayed by the browser. ये किससे display होता है? Web browser से display होता है. Changing the alignment of heading. कैसे alignment of heading को change करता है? We can control the horizontal positioning. हम हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और अलाइनमेंट को ऑफ इन हेडिंग बाय यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट्स. अलाइन एट्रीब्यूट्स को यूज करके टाइप करना है आपको हैशटैग फॉर डिजायर्ड हेडिंग टू यूज. रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क से विद डिजायर्ड हेडिंग लेवल नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6. इन द हेडिंग टैग टाइप करना है आपको अलाइन, रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क से विद द डिजायर्ड अलाइनमेंट ऑफ द हेडिंग लेफ्ट, सेंटर या फिर right. The heading with the desired alignment will be displayed by the web browser. जो desired alignment लगाएगा उसके साथ आपका web browser पे आपकी heading display हो जाएगी. Changing the color of text. अब color कैसे change करता है text का? We can change the color of entire text of our web page to change its appearance. हम entire color को change कर सकते हैं अपने web page को उसकी appearance को change करने के लिए. In the body tag type करना है आपको text question mark, replacing question mark with the name of कोड ऑफ डिजायर्ड कलर. जो कोड होता है नहीं होता है उससे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देना है टू यूज. सो फॉर एग्जांपल इफ वी विश द टेक्स्ट टू बी ब्लू, अगर हमें टेक्स्ट हमें ब्लू चाहिए कलर में देन हमें टाइप करना पड़ेगा बॉडी टेक्स्ट ब्लू. ऑल द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज इज डिस्प्लेड बाय द वेब ब्राउजर. जो भी टेक्स्ट होगा हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होता है वेब ब्राउजर में एक स्पेसिफाइड कलर में आ जाएगा, ब्लू में आ जाएगा. चेंजिंग बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज. बैकग्राउंड कलर को हम कैसे चेंज करते हैं अपने पेज का? हम ऐड करेंगे कलर टू द बैकग्राउंड ऑफ द पेज कर सकते हैं बाय यूजिंग बीजी कलर एट्रीब्यूट. बीजी बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट को यूज करके विद इन द बॉडी टैग टाइप करना है आपको बीजी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क को कलर नेम से और कोड से. द स्पेसिफाइड कलर जो होगा आपके बैकग्राउंड में वो अप्लाई हो जाएगा. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.